We are beginning our session, Contribution of the Progressive Writers Movement to the Indo-Pak Cinema, a presentation by Asif Noorani, moderated by Mr. Haris Guzdar. A prominent figure in the field of the social sciences, Haris Guzdar works on social policy and political economy issues. Guzdar has taught as well as conducted academic research in the UK, India and Pakistan. Besides his academic and consultancy assignments, he has worked on an honorary basis as advisor to research programs, government and non-governmental organizations and political parties. Mr. Guzdar. Thank you very much. Thank you. So it gives me great pleasure to introduce Asif Noorani, who is a very old family friend. And okay. अभी आवाज आ रही है? हाँ, okay. So या तो आवाज आएगी या मैं दिखूँगा, क्योंकि I have to turn this way to speak. So Asif Noorani has been a teacher of literature and then a reviewer of films. He has reviewed music, books, and he's also, I believe you've produced the authentic work on Mehdi Hasan Sahib. He's a frequent visitor to Bombay and a great lover of that city and also of Bollywood. So he knows a great deal about that, about the impact of Bollywood on the culture of big cities. And he studied English literature and then Urdu literature. So he's very familiar with the genre of progressive writing. And for 7 years, he was the editor of one of the most widely read film magazines in Pakistan, which was called the Eastern Film. And that afforded him a ringside view of the developments in cinema. Now, today's talk, and Asif Noorani will speak for about half an hour, I think 25 minutes to half an hour, and then we will have time for discussion, an open discussion. Today's topic is the role of progressive writers in the development of cinema in Pakistan. In Pakistan or India, both? Subcontinental. Okay, all right. Now, before I hand it over to Asif Noorani, I want to say a couple of things about the significance of this talk. And it links in very well with a session that I've just been to earlier where we were celebrating the memory of Habib Jalib, who's I think one of the foremost progressive poets that this country has produced. What a lot of people don't know is that, and you know, a lot of the discussion in that forum was about Habib Jalib's heroic political resistance against dictatorship. The years he spent in jail and the courage of his writings, standing up at the time when people were not standing up. What a lot of people don't know, or what was not discussed in that session, is that Habib Jalib was also an important contributor to the film industry in Pakistan. He was actually a very important part of the Lahore film industry. As a lyricist and as a very inspiring figure who actually inspired not only writers and directors but also actors. So, and you know, there are many people like that. If you look at the contributions of individuals, both in the field of politics and their major contributions for democracy in this country and for peace and for development, and then their contribution to film. But this topic, I'm going to say just 2 or 3 things before I hand it over to Asif. First, there's a question about what is progressive. Now, progressive has often been used as a euphemism for socialist or communist, and in times of repression, communist parties and socialist parties have consciously adopted this term as a way to promote their own ideology without coming directly under censorship. But there is actually a bigger meaning to this term. And even as a political tactic, you find the use of this term not only in Pakistan and India, but also across the globe. And you see it most vividly of all the places in Hollywood. I mean, what is interesting is that the role of progressive writers, playwrights, and actors and directors in the foundation of Hollywood, if you take people like John Ford, he was affiliated with the progressive movement, people like Arthur Miller, a great playwright, and later became famous as the husband of Marilyn Monroe.
So a lot of these people who are foundational to the mainstream cinema in the world have their roots in progressive politics and progressive culture. So one of the questions that I think we want to ponder as Mr. Noorani speaks is that what is it about the left, about progressive politics that produces these iconic cultural figures who also then populate the new genre, which is film, and then make foundational contributions to that. So with that, I'll hand it over to Asif Noorani, and then we will have a session of questions and answers after that. Thank you. Thank you very much. Adab, assalamu alaikum, good afternoon. Before throwing light on the subject and the discussion, I think it would be essential for me to explain what is professional writing. Progressive writing, sorry. I was thinking whether my colleague Maliha would find a seat or not. She did. That's why I faltered. So that much for nepotism. So solidarity. Okay. So progressive writers, to take up from very left, are like artists who think art should be for life's sake and not for art's sake. So literature should reflect life. Literature should be for literature's sake and not for, it should be for life's sake and not for literature's sake. It should have more meaning. It should deal with such problems as war, mayhem, prejudice, and more than anything else, exploitation of the poor and crass capitalism. Can you hear me? All of you. Achha. So anyway, this is not to imply that there was only escapist literature before the progressive writers movement came into the existence. In fact, it was highlighted. Take the case of Munshi Premchand, the doyen of Urdu Hindi literature, who wrote short stories which were realistic and had progressive themes. Allama Iqbal, जिनको के अभी हमने दाढ़ी पहना रखी है, who died in 1938, wrote a poem called Khuda Ka Farman. In fact, I didn't know about it until a week ago when I was leafing through some of my old books. And this poem is as strongly expressed against exploitation of the poor as, say, a poem by Sahil Ludhianvi. I will just quote two couplets from Iqbal's poem. उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार को हिला दो, जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो. गोशे ही कहा मैंने, खोशा है, सॉरी, खोशा है. मेरी उर्दू की लिखाई ज़रा कमज़ोर है, तो उम्मन एडिटर्स ठीक कर देते हैं. तो यहाँ चूँकि मेरी एडिटर मौजूद नहीं है, तो गोशे खोशे खोशे गंदम को जला दो. तो in 1935, some of the UK-based Indian writers who believed in progressive ideas got together and held a meeting at a restaurant, Nanking restaurant in London, and formed the progressive writers movement. These writers were inspired by titanic literary figures like Maxim Gorky and André Gide, and were also influenced by the communists in Britain
this can't be mine, because I told my wife कि इस मौके पे मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा. तो so a high priest of the Progressive Writers Association or the progressive movement was a gentleman called Sajjad Zahir, Banne Bhai. Along with Dr. Mulk Raj Anand, who authored the memorable novels Kuli and The Untouchable, there was a Bengali writer called Jyoti Mare Gupta. These three people wrote the manifesto of the Progressive Writers Association. A year later, the first PWA conference was held in Lucknow. इसके बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन रोशनाई में सज्जाद ज़हीर ने लिखा है कि हम शशोपंज में मुब्तला थे कि किससे सदारत करवाएं. एक तरफ मुंशी प्रेमचंद थे, दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी थे, दोनों प्रोग्रेसिव थे और दोनों बहुत अहम शख्सियात थी. तो और तीसरी तरफ सागर निज़ामी थे जो बहुत बुरा माने हुए थे कि उनके घर टांगा उनको लेने क्यों नहीं पहुंचा. तो ये खैरियत गुजरी कि उनके आने से पहले वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने सदारत मुंशी प्रेमचंद से करवाई और मौलाना हसरत मोहानी को उन्होंने चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी बनाया. अब हम आते हैं उस अरे भाई ये हाँ ये बेगम साहिबा नहीं है इसलिए मैंने फ़ौरन बंद कर दिया. हाँ तो मुझे बंद करना नहीं आता है, अगर कोई बंद कर देता है तो फिर खोलना नहीं आता, तो इसलिए मजबूर हूँ, माफ़ कीजिएगा. तो उसमें तय हुआ और जैसे बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस गुजरी. मुंशी प्रेमचंद भी बहुत खुश थे और मौलाना हसरत मोहानी भी बहुत खुश थे और 6 नुकाती एक क्या कहेंगे मंशूर पास हुआ जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. मसलन कि टू स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म, ब्रिटिश कलोनियलिज्म उस ज़माने में था, और दूसरा फैशिज्म, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. तो हालांकि फैशिस्ट अब भी हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं थे जैसे उस ज़माने. लेकिन एक चीज़ जो थी, देयर वाज वन थिंग व्हिच वाज प्रिवेलेंट देन एंड व्हिच इज़ वेरी वेरी मच प्रिवेलेंट नाउ, इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ सरकार या हुकूमत या गवर्नमेंट की उसको ख़त्म करती थी. अब उनसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दुश्मन जो हैं वो हमारे भाई हैं तालिबान या और दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 9 रुपए की एक गोली पे एक आदमी को ख़त्म कर सकते हैं. और मेरा इरादा नहीं है कि उनके 9 रुपए खर्च करवाऊँ. तो इस तरीके से ये अंजुमन बनी और ये तरक्की करती गई और पाकिस्तान के बाद भी ये हुई. अब हम आते हैं, इसमें 2 किस्म के मेंबरान थे. एक तो हार्ड कोर कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर जैसे सज्जाद ज़हीर थे, जैसे कि सरदार जाफरी थे, कैफी आज़मी थे, और दूसरी तरफ लेफ्ट ऑफ द सेंटर थे जैसे अहमद अली, प्रोफेसर अहमद अली या फैज़ साहब भी मेरे ख्याल में कार्ड होल्डर नहीं थे, कम्युनिस्ट थे. अच्छा, तो बाद में भटके हैं वो. अच्छा, तो अब ये था कि ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का एक ऑफशूट वाज प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, जिसमें के 4 नाम हैं, मुझे 3 याद हैं, एक किसी और को याद हो तो बता दीजिएगा. एक तो थे M.F. हुसैन और एक
थे सूजा, ये दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। एक साहब अभी भी जिंदा हैं और वो है रज़ा, जो नाहिद रज़ा होंगी तो बहुत खुश होंगी, यहाँ कहीं बैठी होंगी क्योंकि वो उनके चचा। और तो ये इतना कामयाब नहीं रही, लेकिन जो एक ऑफ शूट थी जो थी इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में वो कई प्रोग्रेसिव राइटर्स थे जो इसमें शामिल हुए। और इसका मकसद ये था कि अफसाने और नज़में ये तो सब लोग पढ़ लेते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको मैसेज पहुंचता था, लेकिन आम आदमी को कैसे ये मैसेज पहुंचाया जाए। तो थिएटर के ज़रिए उन्होंने ये काम करना शुरू किया, और उस थिएटर के ज़रिए उसमें जो लोग थे वो अच्छा, और ये आपस में मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों में इश्तराक भी था, और मुख्तलिफ जगह इप्टा कायम हुई। महाराष्ट्र में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, गुजरात में थी, बंगाल में काफ़ी एक्टिव थी, पंजाब में काफ़ी एक्टिव थी। तो ये, लेकिन इनमें कोऑपरेशन था। फॉर इंस्टेंस एक बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ कि एक साहब, एक प्ले था बंगाली का जो ज्योतिन्द्र मित्रा ने लिखा था। अगर कोई बंगाली ज़ुबान से वाकिफ़ हो तो मेरे तलफ़्फ़ुज़ को सही कर दे। तो ज्योतिन्द्र मित्रा जो थे, उनका एक प्ले था नवा जिबोनर गान। नवा तो शायद नई को कहते हैं और जिबोनर शायद ज़िंदगी को कहते हैं, गान क्या कहते हैं ये कोई गाने वाला ही बताए तो बताए। और हैं वर्क, अच्छा। तो आई एम सो हैप्पी दैट नाज इज सिटिंग हियर, नाज इकरामुल्लाह, हु इज़ अ ट्राई लिंग्विस्ट। ओके, अच्छा। तो ये जो था, इसको ट्रांसलेट किया गया मुख्तलिफ ज़ुबानों में, इसको प्लेज भी, स्टेज भी किया मुख्तलिफ ज़ुबानों में, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास ने उसको स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया और ये एक मूवी बनाई जिसका नाम था धरती का लाल, जो कि हिंदुस्तान के क्लासिक और पाकिस्तान इंडो-पाक के क्लासिक फिल्मों में उसका शुमार होता है। इप्टा का काम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि मैसेज को कन्वे करना था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और इसकी अब सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो टिकट ख़रीद के जाएं स्टेज देखने के लिए। तो कम से कम ये हुआ कि बदर आपके लिए सीट आगे खड़ी खाली है। ये बदर साहब हैं, हेरल्ड के एडिटर, हमारे दोस्त, ये सबसे आगे बैठिए ताकि आप हुट कर सकें मुझे। तो हम बात कर रहे थे कि तो सोचा ये कि व्हाट अबाउट द मैन ऑन द स्ट्रीट, द लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो टिकट ख़रीद सकें और जाके स्टेज प्लेस देखें। तो उनके लिए स्ट्रीट थिएटर शुरू हुआ। जब स्ट्रीट थिएटर खासा मकबूल हुआ, उस ज़माने में पारसी थिएटर बहुत आम था जो एस्केपिस्ट था। एक बात मैं वादे कर दूं कि मैं पारसी थिएटर की ज़्यादा बुराई यहाँ नहीं कर सकता। ये होटल किसी पारसी का है और वो मार पीट के मुझे बाहर निकालेगा। अगर आप चाहें तो फिर बाहर निकल के हम बात कर सकते हैं मज़ीद उस पर। तो पारसी थिएटर को बहुत धचका पहुँचा इन रियलिस्टिक प्लेस से और स्ट्रीट थिएटर से। स्ट्रीट थिएटर में तो ये भी होता था कि 4-5 लड़के खड़े हैं, उनको कहो तुम भी आ जाओ, तुम भी हिस्सा बनो। कि बच्चे की पिटाई हो रही है तो वो एक आध बच्चा आ गया और कहीं मास्टर साहब ज़रा जोश में आ गए, सचमुच का मारा तो वो अम्मी कह के भाग गया। तो इस तरीके से वो थिएटर, स्ट्रीट थिएटर भी बहुत आम था। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन पारसी थिएटर का था और वो
था सिनेमा. It had become a talkie by that time in the 30s. टॉकीज के आने से बड़ा, एक तो आप हीरो हीरोइन की प्यार भरी बातें भी सुन सकते थे और सास बहू के झगड़े भी सुन सकते थे, और सबसे बड़ी बात यह कि इफ़ यू वांटेड टू शो a mountain, you could take the camera and shoot it there on location, which you can't do it on the stage. चाहे ज़ैनुद्दीन और उनके एहलकार कितना ही कुछ कहें, लेकिन वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती. ज़ैनुद्दीन का प्रोग्राम इसके बाद है और वो उसी वक्त आएंगे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ. तो अब बारी आई सिनेमा की. अच्छा, इप्टा में बहुत सारे प्रोग्रेसिव राइटर्स शामिल हो चुके थे, जिसमें कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, शैलेंद्र जो शायर थे, हिंदी के बड़े शायर, अदाकार बलराज साहनी, उनके भाई बिशम साहनी जिन्होंने के तमास और इस किस्म के सीरियल्स भी बनाए, वो भी उसमें शामिल थे. तो जब थिएटर आया, सिनेमा आया, तो ये सब प्रोग्रेसिव राइटर्स और थिएटर एक्टिविस्ट्स ने सिनेमा की तरफ रुजू किया. इसमें से एक साहब थे जिनका नाम था शैलेंद्र. शैलेंद्र ने कहा, हम अपना फ़न नहीं बेचेंगे, हम फिल्मों के लिए शायरी नहीं करेंगे. लेकिन जब थोड़े से फाके पड़े, हाँ, तो और जब देखा कि उनके साथी बहुत आगे बढ़ गए थे, मुझे गुलजार साहब ने बताया कि साहिर लुधियानवी पहले फिल्मी शायर थे कि जिन्होंने गाड़ी ख़रीदी थी मॉरिस. कहने लगे दूसरे शायर उसको धक्का दे के स्टार्ट करते थे और हम सब उसमें बैठते थे. तो बात ये थी, जब ये बेचारे शायर जो थे, ये अगर किसी अदबी पर्चे में लिखते थे तो अगर बहुत दे दिया तो 10-20 रुपए उनको मिल जाते थे. अफसाने के 20 रुपए और गज़ल 10 रुपए. अक्सर शायर तो बेचारे उससे महरूम रहते थे. वो ख़ास तौर पे वो जो पकड़ पकड़ के अपने गज़लें सुनाते थे और चाय पिलाते थे, वो तो महरूम रहते थे. तो जब सिनेमा में 200 रुपए फ़ी गाना मिलने लगा और रीच भी बहुत बड़ी हो गई, a large number of people sort of they could address a very large number of people. तो मज़ा आने लगा और लोग बहुत आ गए. और आप देखिए कि उसमें ये जो हम बात कर रहे थे ना, सादत हसन मंटो का, he was a case in point. Not known for managing his finances well, Manto's better days in monetary context was when he was employed by Bombay Talkies. When he wrote the script for Chal Chal Re Naujawan and Art Din, he had enough money to spend on his friends. और दोस्त भी जो उनको खिलाते पिलाते थे, वो इस मौके का इंतज़ार करते थे. तो उसके बाद मिर्ज़ा गालिब फिल्म में भी उन्होंने काम किया, लिखा, उसके कहानी लिखी. लेकिन वो जब पाकिस्तान आ गए तो जब पाकिस्तान वो आ गए तो राजेंद्र सिंह बेदी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिनेमा में है, उर्दू फिक्शन में है, उन्होंने उसके मकालमे लिखने शुरू किए और उन्होंने लिखे. और इस फिल्म को प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला और बहुत ज़बरदस्त उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई. इस पर लतीफ़ा भी मुझे याद आया कि मिर्ज़ा गालिब का के मुतालिक ये लतीफ़ा है कि वो आदत से मजबूर होकर जन्नत में हूरों को छेड़ा करते थे. तो जो जन्नत का इंचार्ज जो था, उसने कहा कि अब इनकी सज़ा ये है कि हिंदुस्तान में एक फ़िल्म बनेगी मिर्ज़ा गालिब पर, और जिसमें बलराज साहनी जो है वो मिर्ज़ा गालिब बनेंगे. साहब वो फिल्म बनी और बहुत चल गई, तो गालिब तो बहुत खुश हुए और भी छेड़ने लगे हुरों को. तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे. पर पाकिस्तान में फिल्म बनी और सुधीर उसमें जब गालिब बने और क़यामत आ गई, तो
तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो हाँ हाँ, गालिब को गालिब कहते थे, हाँ खुदा का शुक्र है जालिब नहीं कहते थे। तो अब बात ये हुई कि जब वो पाकिस्तान आए तो अपनी बीवी के कहने से बीबी हव्वा ने हज़रत आदम को जन्नत से निकलवा दिया था, इनकी बेगम ने इनको हिंदुस्तान से निकलवा दिया। तो जब ये पाकिस्तान आए, कराची लाहौर पहुँचे, तो वहाँ पर ये हुआ कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई थी, हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी कि वहाँ स्टूडियो जो थे वो सब हिंदुओं के थे, तो वो जलाए गए और फिर फिल्मी सन्नत हमारी ख़त्म हो गई। फिर उसको दोबारा उसको असर नौ बनाने लगे। तो फिल्मी सन्नत नहीं थी और वो कॉलम लगा करते थे मुख्तलिफ जगहों पर, और उनको इतने पैसे मिल जाते थे कि वो एक बोतल ख़रीद सकें। तो रोज़ाना एक बोतल ख़रीद के वो खाली जेब घर आ जाया करते थे। जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने जड़ पकड़ी तो उस वक्त बदकिस्मती से उस वक्त तक मंटो का इंतकाल हो चुका था। पाकिस्तान में भी चंद प्रोग्रेसिव फिल्में बनी पार्टीशन के मौके पर। मुझे एक बड़ा ताज्जुब होता है इस बात से, मेरे ख़्याल में हारिस से ज़िक्र हुआ था। बाय द वे, हारिस के वालिद मुश्ताक गज़दर जो वो ख़ुद भी तरक्की पसंद थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जिनके दे आर किलिंग द हॉर्सेस एक थी जिसको बाहर इनाम मिला, और उन हारिस की वालदा ने बहुत सारे अफसाने लिखे और पाकिस्तानी अदब नाम का एक पर्चा भी निकाला। पता नहीं इतने अदीबों के घराने में पैदा होकर ये कैसे बेअदब आदमी साबित हुए कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ निकल गए। तो वो भी फिक्शन है कहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात कही। तो अब सिलसिला ये हुआ कि पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान बाहर तो जंग पे और हॉलोकॉस्ट पे इतनी फिल्में बनी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में पार्टीशन पे बहुत कम फिल्में बनी। एक हमारे पाकिस्तान में बनी थी करतार सिंह, जो परमेश्वर सिंह नाम के ड्रामे, अहमद अदीम कासमी साहब के ड्रामे पर मबनी थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, हिंदुस्तान में रिलीज़ हुई और 20 हफ्ते चली थी दिल्ली में। तो इस लिहाज से वो बहुत कामयाब फिल्म थी। सैफुद्दीन सैफ ने बनाई थी और गालिबन उसके ये मकालमे भी किसी ऐसी तरक्की पसंद अदीब थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सुल्तान अरशद हमारे साथ बैठे हुए, ये मैं इनको फिल्मों के एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। तो ये सब चीज़ें बताते हैं और सही 99% ये सही बताते हैं। 1% मैं मान लेता हूँ, क्योंकि जो शख्स 99% सही बताता है तो 1% गलत भी तो बता सकता है ना। तो बात ये थी कि कासमी साहब के ये करतार सिंह बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेटिंग फिल्म थी, पंजाबी में थी, और मेरे ख़्याल में इससे अच्छी पंजाबी में कोई फिल्म नहीं बनी थी और शायद उसके बाद भी नहीं बनी। तो दूसरी फिल्म जो थी वो जो पार्टीशन पे जो बहुत थी, उसका नाम था गरम हवा, जो MS साथियों ने बनाई थी, जिसकी के स्क्रिप्ट जो था, कहानी थी इस्मत आपा की, इस्मत चुगताई की, और उसका स्क्रिप्ट जो था वो शमा जैदी साथियों की बेगम जो थी उन्होंने और कैफ़ी साहब ने, कैफ़ी आज़मी ने लिखी थी। एक और फिल्म थी जो कि श्याम बेनेगल ने बनाई इसी इंडियन मुस्लिम्स डिस्टर्ब बाय पार्टीशन की थीम पर, वो मम्मो थी। और श्याम बेनेगल का ये कहना के मुतालिक कहना चाहिए कि उन्होंने
कैसी रियलिस्टिक प्रोग्रेसिव थीम्स पे फिल्में बनाई, मसलन अंकुर है, निशांत है, भूमिका है, और भी आपको मुझसे ज़्यादा याद होंगे उनके नाम। और उनकी ये फिल्में जो हैं, उनकी ये फिल्में मुझे याद दिलाती हैं किसका, बिमल रॉय का है। बिमल रॉय ने तो क्या क्या फिल्में बनाई थी। अब उन्होंने, बिमल रॉय का ये सिलसिला था कि वो, जिसे हम पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, बांग्लादेश के किसी छोटे से गांव में, जब न पाकिस्तान था न बांग्लादेश, वहाँ पैदा हुए थे और ज़मींदार थे उनके वालिद। लेकिन मैनेजर ने पता नहीं क्या गड़बड़ की कि उनको, उनके छोटे भाई को और उनकी वालदा को निकाल बाहर किया। तो बहुत, वो ज़मींदार थे तो ये बेचारे किसान बन गए और फिर कलकत्ते आ गए। तो उन्होंने वहाँ पर किसानों की कस्मा पुरसी देखी थी, और एंड दैट वाज हाउ ही गॉट द थीम ऑफ दो बीघा ज़मीन। और उन्होंने एक फिल्म शायद बंगाल के कहत पे भी बनाई थी। तो श्याम बेनेगल की मम्मो का तो मैं जिक्र ही कर चुका हूँ। तो ट्रेन टू पाकिस्तान है जी, अच्छा चलिए, हारिस ने मुझसे कहा जल्दी जल्दी, तो अब बीच में न बोलिएगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब नाउ देखिए, आप लोग झगड़ा बाहर करेंगे, दोनों ख़वातीन के झगड़े हो रहे हैं। तो एनीवे ऐसी थीम थी, पेशेंट्स की थीम, जो कि महबूब खान, जो कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने भी बनाई। और वो फिल्म जो थी रोटी औरत, जिसको मदर इंडिया बनाया गया। पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव राइटर्स थे जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। रियाज शाहिद ने ससुराल बनाई, हमीद अख्तर ने प्रोड्यूस की थी सुख का सपना, हाजरा मसरूर ने सुरूर बाराबंकी की फिल्म आखिरी स्टेशन की कहानी लिखी, जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अभी शबनम कह रही थी, पिछले दिनों फ़ोन पे बात हुई, कि इससे अच्छी कोई फिल्म मैंने नहीं की। राजेंद्र सिंह बेदी का नाम आता है तो एक चादर मैली सी जो बनाई थी संगीता ने मुट्ठी भर चावल के नाम से। हिंदुस्तान में गीता बाली बनाने वाली थी रानू के नाम से, लेकिन वो इंतकाल कर गई। ज़िया सरहदी ने वहाँ पर प्लेज, फिल्मों की कहानियाँ लिखी, डायलॉग लिखे। हम लोग और फुटपाथ जैसी फिल्म बनाई, और यहाँ आके राहगुज़र बनाई। राजेंद्र सिंह बेदी ने जहाँ इतना कुछ लिखा, उन्होंने एक फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनाई, दस्तक। उनकी एक ही फिल्म कामयाब रही और वो थी फागुन, और मुझे यकीन है कि वो उनसे ज़्यादा मधुबाला की वजह से कामयाब हुई। तो ख्वाजा अहमद अब्बास तो, he was a man of many facets. He wrote some fine short stories in Urdu and Inqilab, a novel in English, and he contributed much as a writer and director, winning many awards in the process. I'll not enumerate those films. फिर मजरू सुल्तानपुरी, प्रोग्रेसिव राइटर, बहुत प्रोलिफिक थे। उन्होंने मेरे ख्याल में नंबर 2 आनंद बख्शी के बाद सबसे ज़्यादा गाने उन्हीं ने लिखे थे। अब मौजूदा सिचुएशन मुझे नहीं पता, वो भी प्रोग्रेसिव थे। और जब प्रोग्रेसिव की बात निकलती है तो गुलजार साहब का जिक्र आता है, जो कि कैसे, क्या उनका कैलिबर है कि वो स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, डायलॉग राइटर भी हैं, फिल्मी गाने भी लिखते हैं, फिल्में भी बनाई। और एज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव मेनी अदर उर्दू पोएट्स एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। और उनकी बात करने के लिए हमको ज़्यादा वक्त दरकार होगा, हारिस को भगा देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें हारिस की ज़रूरत है। तो एज फार एज film lyricists are concerned, one cannot afford to forget the one and the only Sahir Ludhianvi. He gave a new dimension to film lyrics. ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के,
is just one of the many examples of lyrics that leave you pondering. There can't be a better contrast between romanticism and realism than in the duet that he wrote and was sung by his lady love, Sudha Malhotra and Mukesh. She croons, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. To which he replies, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ और रख्सार की जन्नत नहीं कुछ और भी है. भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है. साहिर ने अपनी कई नज़मों में फिल्मी गानों में ढाल दिया. इसी तरीके से बहुत सारे लोग नज़में थी, ये अफसाने तो थे, ये नावल थे जिनको फिल्माया गया, लेकिन फैज़ साहब ने सिवाय एक दो फिल्मों के, सुख का सपना और कसम उस वक्त की के अलावा फिल्मी गाने नहीं लिखे. लेकिन उनकी शायरी को गवैयों ने बहुत गाया. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नूरजहां ने गाई. और लोगों ने पूछा नूरजहां कि फैज़ साहब आप ये सुनवाइए ये मुशायरे में. कहने लगे भाई ये तो अब नूरजहां की हो गई है, आप उन्हीं से सुनिए. और इसी तरह से मेहदी हसन की जो गुलों में रंग भरे है. वक्त बहुत कम है, कई लोग हैं, हबीब जालिब, अली सरदार जाफरी, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. हबीब जालिब का तो ये बता चुके हैं. आखिर में सिर्फ मैं एक 5-6 लाइन साहिर की सुनाऊंगा. वो सुबह कभी तो आएगी, ये उनकी नज़म थी जो फिल्म प्यासा के लिए गाई गई. वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, इज़्ज़त को न बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. बहुत बहुत शुक्रिया. और अब जो है वो वक्त है कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब करें. और आपने जो इतनी एक पैनोरामिक व्यू दिया है, इसमें आपसे कुछ और पूछें और लोगों के पास भी जो चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहें वो करें. मैं एक जो है वो एक ख़्याल या एक सवाल से शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर हम सवालात और लेते हैं. वो ये है कि 2 तरह के असरात नज़र आ रहे हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स के सिनेमा के ऊपर. एक तो ये है कि वो अफराद जो कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट की भट्टी में जो है वो तैयार हुए एज रिफाइंड पोएट्स एंड राइटर्स, वो अफराद और एक्चुअली एक्टर्स भी, वो अफराद जो है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में आए और उन्होंने उसमें बहुत जो है अहम किरदार अदा किया, और वो अभी भी उनके असरात मौजूद हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो थीम्स थी प्रोग्रेसिव लिटरेचर की, ख़ास तौर पर एक्सप्लॉयटेशन वाली, राइट्स वाली, वो थीम्स जो हैं वो एक्सप्रेस हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में. तो सवाल ये है कि आपके ख़्याल में ये जो 2 तरह के असरात हैं, इनमें से आपके ख़्याल में गालिब असर कौन सा है, या हम फैसला नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इसमें फ़ैसला करना मुश्किल है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल फिल्म पे बहुत मुनहसर है कि चाहे वो पहली सफ़ के लोग हों या दूसरी सफ़ के लोग हों, जहाँ अच्छा काम हुआ वो ज़्यादा मकबूल हुआ और उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. जैसे मैंने कहा ना, महबूब खान पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जैसे मदर इंडिया, जिसमें कार्लोवी वराय में बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, और नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस के मिला था, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के वो माहिर थे.
जी, अब अगर हाँ, आप असलम बेसिकली मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो क्या रीजनल सिनेमा जो उस वक्त तक डेवलप हो चुका है, लेट 30s से आना शुरू हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड इंडस्ट्री पे या जो प्रोग्रेसिव राइटर्स है उनका इन्फ्लुएंस उस पर है या नहीं है। नंबर 2, इब्टा जैसा कोई फोरम पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाया? पाकिस्तान में तो क्यों नहीं बन पाया, इसलिए कि प्रोग्रेसिव राइटर्स पे अताप तो फ़ौरन ही हो चुका था और उन पर बड़ी मुश्किल हुई। राइटर्स गिल्ड बनाया गया और प्रोग्रेसिव राइटर्स जो थे, लैलो नहार जैसे अखबार को बंद कर दिया गया। तो पाकिस्तान में तो इब्टा यानी आप परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं सकते थे। इक्का दुक्का अभी बाद में शीमा किरमानी वगैरह ने किया था स्ट्रीट थिएटर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया। पहला सवाल आपका रीजनल का था, तो हाँ, रीजनल सिनेमा का असर भी हुआ है और बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में रीजनल कहानियों को शूट किया गया और रीजनल अच्छी फिल्में जो हैं रीजन की, साउथ की या बंगाल की, उनको फिल्माया गया। ख़ासतौर पे बंगाली डायरेक्टर्स ने वहाँ की अपने वहाँ की फिल्मों को लेके हिंदी फिल्में बनाई जो खासी कामयाब रहीं। जी क्या कह रही? सत्यजीत राय ने तो बंगाली में की, मगर जी सत्यजीत राय ने बंगाली में की। ये आदि बंगालन है ना, तो आसिफ साहब आपकी इजाज़त हो जी तो कुछ मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। हाँ ज़रूर। ये साल ख्वाजा अहमद अब्बास का सेंटिनरी है। जी जी जी। बॉर्न इन 1914। ओह अच्छा अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जब धरती के लाल बना रहे थे तो ही हैड टू टेक लोन। क्या बना रहे थे? सॉरी, धरती के लाल। हाँ, धरती के लाल जब बना रहे थे हाँ, तो उन्होंने लोन लिया था, जिसको वापस करते करते उनको 30 साल लगे। तीसरी बात यह है कि जब धरती के लाल की शूटिंग वो कलकत्ता में कर रहे थे तो पुलिस उनको हका देती थी, कैमरामैन को, डायरेक्टर को और आर्टिस्ट को। तो उन्होंने सेट पुणे में जाके बनाया, वहाँ पर फिल्म बनाई। सपोजिटली कैलकाटा, बट इट वाजंट रियली कैलकाटा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो मैंने अपनी बीवी से पूछा। मैंने कहा कि मेरा क्या मुकाबला उनसे? नहीं नहीं, क्योंकि पूछा अभी मैं, उसका भी जवाब बता दूंगा, आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा जिस मुल्क में हबीब जालिब जैसे शायर, फैज़ जैसे शायर, उस मुल्क में डिक्टेटर्स एक के बाद दीगरे आते गए, तो उसने जवाब दिया लेकिन जमहूरियत नहीं आई। सवाल यह कि क्यों पाकिस्तान में भी इतना ही कल्चरल एक्टिविटी रही है। आज भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मधिया गौहर और शीमा किरमानी और निगहत चौधरी जैसे आर्टिस्ट के, या ज़िया मोहिउद्दीन के आर्टिस्ट के बावजूद क्यों नहीं पाकिस्तान में प्रोग्रेसिविज्म didn't take roots? Why didn't they stand up to dictatorship? Why didn't they stand up to Taliban? Why didn't they stand up to religious extremism? मेरे ख्याल में आपकी बेगम ने बहुत अच्छे सवाल किए। ये सवाल आप उन्हीं से कीजिए, मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, देखिए हाँ, सही दुरुस्त है, मशवरे पे अमल होगा। I have a question about the आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Sorry. नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं। Can you hear me now? हाँ, जोर से बोलिए। Okay. I have a question about the transition of the progressive writers movement from theatre to cinema. And basically, I wanted to know if you feel that the message of the movement itself was more prominent during theatre and whether it became more about entertainment when it transitioned to cinema. Like, where do you think the message was the strongest? Where do you think it got lost, if it did? अरे साहब जवाब दीजिए, क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं सका एक कान। सवाल ये था कि जो
ट्रांजिशन आया थिएटर से सिनेमा की तरफ, हाँ प्रोग्रेसिव जो वहाँ से, हाँ तो जो पॉलिटिकल मैसेज था, हाँ क्या वो डाइल्यूट हो गया और क्या एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए, और इन दोनों में से जो है कौन सा जॉनर था जिसमें वो जो पॉलिटिकल मैसेज था वो ज़्यादा ताकतवर? देखिए बात ये है कि जहाँ सिनेमा की ये एक एडवांटेज ये है कि वो रियलिज्म है की तरफ ज़्यादा माइल है और उसमें वो ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये वाज़ेह है कि सिनेमा में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो जैसे इन्होंने फरमाया कि 30 साल लगे कर्जा अदा करने में, तो उसमें उनको कोई ना कोई पॉपुलर एलिमेंट ज़रूर रखना पड़ता है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट and I strongly believe that anything which is popular need not be pedestrian. तो हम देख चुके हैं, अब जैसे एक फिल्म जो थी नन बट द ब्रेव जो फ्रैंक सिनेट्रा ने प्रोड्यूस की थी, उसमें एक जजीरे में, एक आइलैंड में द जापानीज एंड दो एक शिपरेक होता है, एक प्लेन क्रैश कर जाता है, तो जापानीज भी हैं और एलाइड फोर्सेस भी हैं, वो जानते हैं कि हम एक दूसरे को मारेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो एक ट्रूस हो जाती है, बाहर जंग लड़ी जाती है। तो जब एक बच्चा जापानीज ज़ख्मी होता है तो कोई उनके पास डॉक्टर नहीं होता है, तो वो एलाइड फोर्सेस से एक डॉक्टर आता है और उस बच्चे में और उसमें वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, एक ही ज़ुबान नहीं है दोनों की, लेकिन बाप बेटे जैसी एक रिलेशनशिप कायम हो जाती है। तो जैसे इन्होंने कहा हॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनी हैं, बट यू कांट टेक अ रिस्क इन सिनेमा एज यू कैन टेक इन अगला सवाल है, मैं फिर इसी सवाल से मैं एक चीज़ आपसे फॉलो करना चाहता हूँ खुद, वो ये कि जो सिनेमा की तरफ आना जो है वो ये है कि एक तरह से एक फुल इंडस्ट्री बन जाती है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मुख्तलिफ तरह के क्राफ्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों को एक साथ काम करना, कॉम्पोजिट आर्ट है। जी हाँ। अब ये बताइए कि कई मुल्कों में, सिर्फ इंडिया में नहीं और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि जो बदतरीन जो वक्त आते हैं डिक्टेटरशिप के जो आए हैं, ख़ास तौर पर ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में भी, उस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी न किसी तरह से, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए ही फिल्म बन रही थी, लेकिन एक लिबरल सोच के लोग मुसलसल काम करते रहे। हाँ। और ये चीज़, ये पैटर्न हमको अमेरिका में भी नज़र आता है, जब मकार्थीज़म में जो है वो उनका टारगेट था और हॉलीवुड में वो चल रहा था। आपके ख्याल में क्या, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल मैसेज, इज़ देयर समथिंग स्ट्रक्चरल अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री दैट promotes, allows or protects the continuation of liberal thought in that industry? Well, I don't know about that, but I must say that there's a continuous struggle between people who come with ideas and people who invest money, and he who pays the piper most often calls the tune, sort of a thing. तो अगली दफ़ा हारिस मैं आपके सवाल के जवाब की तैयारी करके आऊँगा ज़्यादा तरीके से। आप जो है क़यास आ रहे भी कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो बताया ना कि वो टसल तो रहता ही है बिटवीन लिबरल माइंडेड पीपल। आए यहाँ लिबरल माइंडेड पीपल, कुछ लोग ढल गए यहीं के हो रहे और कुछ लोग गोने कामयाब नहीं हो सके और कुछ उसके बावजूद भी अपनी बात को कह गए और कामयाबी से कह गए। मैं आपको सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, जैसे साहब ने कहा कि राइटर को सिर्फ एक रिब ऑफ पेपर चाहिए और पेन चाहिए, हाँ, आर्टिस्ट को एक चारकोल चाहिए और दीवार चाहिए, वो उसमें अपने लेकिन फिल्म इज एन असेंबली ऑफ वेरियस टैलेंट, component of various talents which requires money and investment. You have to recover that investment. Thank you very much. You can be. Next time we'll see that you are seated here. Thank you very much. जी, कंट्रीब्यूशन टू द इंडो-पाक फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, आपने बहुत अच्छी तकरीर की और बताया हमें
लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने वैसे तो मेंशन किया कि जितने मोस्टली ऑलमोस्ट 90% और मोर देन दैट राइटर्स और शायर जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में आए, प्रोग्रेसिव राइटर्स, दे वर उर्दू राइटर्स एंड पोएट्स, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को चढ़ाने में, बढ़ाने में, और उर्दू लैंग्वेज का क्या रहा? कहलाती हिंदी है वो, लेकिन आज भी वो है उर्दू। जावेद अख्तर ने कहा है मैं उर्दू में लिखता हूँ और ये ज़बान उर्दू ही है, बकौल क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के, जो एक ज़बान हाईजैक करके नाम तब्दील कर दिया गया है। देखिए, तो आपने उस पर नहीं रोशनी डाली। नहीं, मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजे की बात यह है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में भी जो एसोसिएशन जो थे उसमें उर्दू के राइटर्स बहुत ज़्यादा थे बनिस्बत हिंदी के। मैं कह रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर मज़हब का जिक्र नहीं था। वहाँ कृष्ण चंद्र भी थे, राजेंद्र सिंह बेदी भी थे, और उनके महेंद्र नाथ भी थे, और फिराक गोरखपुरी भी थे, और वहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी और बलवंत सिंह भी थे। तो और शायरों में भी आप देखें तो ये सब उर्दू है। और ये बात सही है कि उर्दू, आपने बिल्कुल सही कहा, और उर्दू में का बहुत को पॉपुलर करने में बड़ा वो, वरना वैसे तो उम्मन फिल्मी गाने सहल उर्दू में लिखे गए, लेकिन बाज़ बड़े मुश्किल गाने भी होंगे। मेरे ख्याल में एक दो सुल्तान अरशद साहब बताएं जिसमें के कई गाने हैं जिसमें कि उर्दू ज़रा निस्बतन सकील होने के बावजूद भी मकबूल हुई। आपको हाँ, पहले दोनों ज़ुबानों में आते थे, हिंदी में भी नाम दोनों ज़ुबानों में था। ज़रा सुल्तान अरशद साहब को बता दीजिए। सुल्तान साहब, आप बताना पसंद करेंगे? माइक दीजिए इनको। साहिद साहब ने एक नज़्म ख़ास तौर पे कही थी फिल्म ताजमहल के लिए, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहो ज़फ़र के दामन पे खूने इंसान का रंग क्यों है। वाह। और इससे आगे भी जो उसके अशार हैं वो खासी दकीक ज़बान इस्तेमाल की गई है, लेकिन मकबूल हुए, बेहद मकबूल हुए। तो आपने हवाला दिया था उनकी नज़्म जब प्यासा में शामिल की गई थी, बल्कि नज़में, हाँ, तो वो कोई सहल ज़बान नहीं थी, और उनके कलाम से, उनके मतबूआ कलाम से लेके वो फिल्म में शामिल की हाँ, गई थी जो छपी हुई थी जी, और बेहद मकबूल हुई थी। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं। हाँ। To make a quick comment on Pakistani cinema, there was a reference to question, comment on why Pakistan was not able to produce films containing. आपकी आवाज़ नहीं आ रही। I was just saying there was a comment as well as a question about Pakistani cinema. There was a query as to why Pakistani cinema did not contain the kind of political protests as Indian cinema from time to time did. I think one ought to mention those intrepid individuals who actually did struggle in Pakistani cinema. I mean, a case in point is that of W.Z. Ahmed, who made Ruhi in the 50s and was banned because of apprehension that it would foment communism in the country. And Which film you said? Ruhi. This was his first film. It was banned. So the investment went down the drain. I also want to mention that stalwarts like Riaz Shahid and Khalil Kaisar, they use the metaphor of colonial administrators or the problem in the Middle East to speak about tyranny within the country. So I think we should give them credit for making that kind. Yes, but I don't think Ruhi was banned. मैं होश संभाल चुका था उस वक्त तक. I was born in 42 and this is something which happened in 54 and Ruhi was made by W.Z. Ahmed before he made Wada. It was a thought-provoking film. Yes, I know there were comments on the police people कि भाई वादा कर रहे हैं आप, वो पुलिस वाला वादा तो नहीं है. तो इस तरीके से चीज़ें थी, but it was not banned. Unfortunately, the film didn't do well because it perhaps
came much before the time. जी आप कोई सवाल पूछ रहे थे? हाँ, कहिए. इधर उनके बराबर the first movie to be banned, the first ever Pakistani movie to be banned. It was released. It was released and it ran for 4 weeks. Withdrawn. It was banned. Well, I think we both will have to look back in Don's library and find out, because I don't think it was banned. जी बराबर वाले साहब. सवाल ये है कि my family owned a cinema, and so I grew up watching movies, Urdu, Pashto, Punjabi movies, and I have witnessed movies coming out of the 60s and 70s, a continuous decline in the quality. और जारी बात है वो उसमें political पे चलें, political भी है, और वो जो liberal भी movies बनी है और जो progressive movies भी बनी है. So my simple question is, what accounts for this in your opinion? ये जो complete decline हो गया, पर जबकि बड़ी अच्छी ज़बरदस्त movies 50s में और 60s में यहाँ बनी. मैं समझ भी नहीं आया क्या कह रहे हैं. मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. जी आप दे दीजिए, बस उसके बाद फिर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अगली क्या मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कहा कि एक बार आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? अनवर अब्बास. हाँ, आसिफ भाई आप ही भूल गए. मुझे तो याद है, लेकिन इनको बता देना. मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने बेनज़ीर भुट्टो से पूछा था कि ये क्या वजह है, क्योंकि मैंने कहा 7 मुहर्रम को जावेद जब्बार की फिल्म आई थी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, बम्बई, और मामूजार और मैं 7 मुहर्रम को उसे देखने गए. As a result, all the women boycotted us. We almost didn't get any dinner. That is the kind of interest we had in Pakistani films. और आप लोगों ने इंडियन फिल्म्स को बैन कर दिया. अब तो खैर मीडिया ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है. तो जब आपने बैन कर दिया, so you were not exposed to the technical and the literary and the cultural development of the cinema industry. आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अपने दिलो दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए. That is why your films have declined. Right. Okay. Now, will you sum it up? So I think that thank you very much, all of you, for this very lively discussion. Thank you for summing up such a long history of cinema and writing. I hope that this talk becomes a platform for a longer piece, perhaps even a book, because I think the subject certainly does merit a book. Your father wrote a book, the first and the only book on the history of cinema. And yes, but this connection between the progressive writing, progressive movement, and mainstream cinema, yes. I think it's a fascinating subject. It certainly is. Which we should return to. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, Khuda Hafiz.